Hello, everybody. Hopefully, you all are doing great. Raman Taliwal live back on our page. And as you know, okay, I'm a digital business entrepreneur and helping busy parents, busy moms, or the motivated individuals who are looking for something to start into their online space. They wanted to work from their phone and laptop, and they're looking for a time freedom, allocation freedom life. Then we are here to guide you, right? ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਬ੍ਰਿੰਗ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਦੀ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਐਂਡ ਡਾਊਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋਏ ਐਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੋ ਇੱਕ we can say a real people business ਹੈਗਾ. This business is a people business, right? And this business has the potential to change your life, right? And we are the live example here. So ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ another business partners ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ inspiring journey share ਕਰਨਗੇ. Hopefully ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ journey ਤੋਂ inspire ਹੋਵੋਗੇ ਐਂਡ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਫੈਂਸ ਸਿਟਰਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਡਰ ਐਂਡ ਡਾਊਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਡਰ ਐਂਡ ਡਾਊਟਸ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਸੋ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ from last 4 years now I'm in this business platform and believe me this business changed my life and before joining this business I have no idea कि किस तरह business का platform work करेगा and ना ही मेरे को कोई technical skills सीखियां each and everything इस business के platform ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ learn ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਬਣਿਆ ਤੇ business ਦਾ package provide ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ plug in ਹੋਵੋਗੇ you will learn each and everything ਸੋ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਹੈਲੋ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਕ੍ਰੂਤੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ ਐਂਡ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ you have some doubts and concerns before joining this business please share that with my audience as well. Thank you so much Raman and everybody. आप सब लोग कैसे होंगे और हाँ बहुत सारे डाउट्स होते हैं जब भी हम कोई नई चीज़ करने जाते हैं बट आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि लाइक शी सेड माय नेम इज़ कृति. Originally I am from India and as of now I am living in Halifax, Canada with my husband and 2 teenage children. तो जब भी हम अपना देश छोड़कर आते हैं ना तो हमें नहीं पता होता कि क्या क्या आगे हमारी ना उसमें लिखा है हमारी जर्नी में लिखा होता है बट रियलिटी हमेशा अलग ही रहती है. तो जैसे मेरा एजुकेशन था आई एम MBA फाइनेंस और फिर इंडिया में भी मैंने 11-12 साल तक जॉब करी है और यहाँ आने के बाद भी मैंने जॉब ही ढूंढा था क्योंकि जब इंसान जॉब माइंडसेट से आता है तो जॉब ही ढूंढता है और स्पेशली जब ऐसे कंट्रीज में आते हैं तो वी कैन नेवर थिंक ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस इनिशियली. तो मैं जॉब ही ढूंढ रही थी इनिशियली. जो सबकी स्ट्रगल होती है सारे जो भी इमिग्रेंट्स होते हैं सबकी चैलेंजेस एक जैसे ही होती है कि घर ढूंढना बच्चों को सेट करना नए कल्चर से नए लोगों से थोड़ा सा यूज टू होना हाँ जॉब के लिए ढूंढना अपने करियर में जॉब ढूंढना वही सारी चैलेंजेस मेरी भी थी. जॉब को ढूंढना मैंने इनिशियली सर्वाइवल जॉब्स करनी पड़ी बेशक और इवेंचुअली ढूंढते ढूंढते थोड़ा एक्सपीरियंस गेन हुआ मुझे अपने फील्ड में जॉब भी मिल गया. जॉब तो मिला बट मेरे हस्बैंड को भी जॉब मिला अच्छी खासी डिसेंट सैलरी थी वैलिड जॉब था खुद के फील्ड में जॉब थी तो वो अच्छा भी लग रहा था. वेरी सुन वी रियलाइज कि जो हमारे पे चेक्स आ रहे थे दे वर जस्ट इनफ टू पे आवर बिल्स एंड लिव कंफर्टेबली. उसके बियॉन्ड जैसे एक इंडियन मेंटालिटी होती है हम लोगों की कि थोड़ा सेविंग्स का कॉन्सेप्ट होता है हम पेरेंट्स का भी टेक केयर करते हैं बच्चों को यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए भी हम सेव करते हैं कि कि यहाँ पे कितना महंगा होता है यूनिवर्सिटी एजुकेशन. हाँ जी. तो मुझे लगा कि इन सब चीजों के लिए मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं था. मतलब आई कैन नॉट प्लान एनीथिंग फॉर माय फ्यूचर सेल्फ कि इंडिया भी विजिट करना होता है. सो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस कि एक बार इंडिया विजिट करना तो इट्स अ बिग प्रोजेक्ट. तो वो सारी चीज के लिए कुछ भी नहीं था. ऑन द अदर साइड आई रिमेम्बर माई कॉर्पोरेट लाइफ विच हैज लेफ्ट मी विथ नो टाइम फॉर माई सेल्फ एंड माई फैमिली एज वेल. बिल्कुल बच्चों के लिए वक्त नहीं मिल रहा था बल्कि वो भी नए थे उनकी अपनी स्ट्रगल्स थी. ऑफकोर्स मैं ये नहीं बोलूंगी उनकी हमारी जितनी स्ट्रगल्स थी या वो डे केयर भी नहीं जा रहे थे बट उनकी खुद की एक चैलेंजेस होती थी. ना दोस्त थे कल्चर नया था एजुकेशन सिस्टम नया था एंड वी बोथ आर टू बिजी टू परफॉर्म वेल इन आवर जॉब क्योंकि अगर जॉब में अच्छा नहीं करेंगे तो फिर ग्रोथ नहीं मिलेगी. सो ये सब सारी चीज देखकर मुझे लगा कि बच्चों को भी जरूरत है तो लेट्स स्टेप बैक. तो मैंने अपने जो हाई प्रोफाइल वाला जॉब था उसको छोड़कर मैंने सोचा कुछ घर से कर लेती हूँ थोड़ा सपोर्ट भी हो जाएगा और फैमिली को भी मैं बच्चों को भी मैं देख लूंगी. तो frankly speaking it was not an intention to find any business but somehow this opportunity came across और
इनिशियली जब मैंने पहली बार इसको देखा तो इट लुक्स सो फ्लैशी, और ऐसा भी लगा कि जो भी मुझे चाहिए सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें है। मतलब हम क्या चाहते हैं कि हाँ, हमें फ्लेक्सिबली कोई काम करने को दे दे, हमारी अच्छी खासी इनकम हो जाए, साथ में बच्चे भी पल रहे, फैमिली लाइफ मेंटेन हो जाए, इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करे और अच्छा खासा इनकम पोटेंशियल हो, यही तो चाहिए। हाँ सब जी। कुछ दिखा, बट एक जो होता है ना कि एक ह्यूमन नेचर होता है कि थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाना हर चीज को लेकर। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि दो तरह के डाउट्स होते हैं, एक तो एक लॉजिकल डाउट्स होते हैं और एक सेल्फ डाउट्स होते हैं। लॉजिकल डाउट्स वी कैन डेफिनेटली डील, जो मैंने भी डील कर लिया कि हाँ भाई बिजनेस कैसा है, फेक तो नहीं है, रियल तो है, लाइक लेजिट है, ये सारी चीजें तो हमने तुरंत पता कर ली, बिकॉज आजकल इंटरनेट पे इतनी सारी चीजें अवेलेबल है कि इट्स नॉट अ बिग डील। बट जो रियल डाउट्स होते हैं वो सेल्फ डाउट्स थे, क्योंकि मैं पहले फाइनेंस में काम करती थी, 13 साल का मेरा करियर था फाइनेंस में। तो and this is a marketing business, so it's totally opposite of what I was doing since last over a decade. तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। दूसरा कि मैं बहुत कैमरा शाय भी थी, क्यों? क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही ऐसा था। आई वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क इन द क्यूबिकल, मुझे क्यूबिकल से बाहर देखना भी नहीं था, 2-4 एक्सटर्नल एजेंसी से बात कर ली, बात खत्म। और हम अपने आप को बड़े वो समझते थे कि हाँ हमें सब कुछ नॉलेज होता है, बट हाँ तो मुझे उसके लिए टाइम लगा थोड़ा सा कि मैं कैसे कर पाऊंगी। बट द बेस्ट थिंग आई वुड से कि कम्युनिटी, जो आगे जाकर हम आप लोगों के साथ भी बात करेंगे, कि जो बिजनेस कम्युनिटी है जिसका हमें एक्सेस दिया जाता है, और जब हम उनको एक्सप्लोर करते हैं, दैट्स द रीजन हाउ आई कैन रेजोनेट माई सेल्फ। और तभी पता चला कि अगर मेरे साथ कोई और भी एक बंदा है जो फाइनेंस बैकग्राउंड से है और वो इस बिजनेस को कर रहा है, तो आई कैन रेजोनेट कि उसके पास भी कुछ सेट ऑफ स्किल्स होंगे जो मेरे पास भी है, और जो कुछ स्किल्स उसके पास भी नहीं होंगे। तो हाउ डिड ही वर्क ऑन दैट, ही और शी वर्क ऑन दैट, एंड हाउ कैन दे बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई जंप इनटू दिस बिजनेस। That's really nice. ये वही है ना कि कृति जी, एक वो माइंडसेट होता है आपका कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, अगर अभी नहीं तो कब, राइट? जब आप उस सिचुएशन पर होते हो ना, then you just to want to layer out everything to check so it it's out. always you have to work on yourself rather than working on external चीजें। वो तो बहुत क्रिस्टल क्लियर होती है, हम सबको समझ में आ जाती है, बट हमें खुद के ऊपर ही काम करना होता है, एंड दैट्स we have to take one bold move. Hanji, that's true. Yeah, thank you sharing your information and your that you like whatever the doubts and concerns you have. So Inderjit ji, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡੀਟੇਲਡ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੋ, and I really know ਕਿ when you start the business and today your journey is a huge impact, right, huge difference, right? So ਥੋੜਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਰਮਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਪੇਜ ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ontario ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 14 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇਖੋ, ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਈ ਗਈ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਤੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੱਕ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਕੈਮ ਜਾਂ ਫਰਾਡ ਹੋਊਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸੋਚਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਫਰਾਡ ਜਾਂ ਸਕੈਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਇਲ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ $149 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੈਨੂਅਨ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮੈਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਮਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਨਾ, ਘਰ ਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਐਜ਼ ਅ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੌਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਹਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ। Yeah. ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆਪ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਆਉਣੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂ, ਹਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿੱਦਾਂ That's true. ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। Yeah. ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ, ਬੰਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਸੋ Yeah. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਨਾ, ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। Yeah. ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਵਾਂ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਹੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਵਰਕ ਫਰੋਮ ਹੋਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੇ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬਸ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਤੋਂ 4 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਨਹੀਂ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਦੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 9 ਤੋਂ 4, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਲੱਭ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ, ਹਨਾ, ਟਾਈਮ ਫਰੀडम ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। Yeah, definitely. Yeah, ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਗਰੋਥ ਦੇਖੀ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖੜਿਆ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਸੱਚੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਰੱਖਿਆ ਵਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਐਕਸਟਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਤੁਸੀਂ। That's true. ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਰਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਲਰਨ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਰੱਖਦੀ ਆ, ਮੋਟੀਵੇਟ ਰੱਖਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ, ਯੂ ਫੀਲ ਪ੍ਰਾਊਡ ਔਨ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਵਟ ਐਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਿੱਲਸ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਪ ਆ, ਹਨਾ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਆਪਾਂ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਨਾ। ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਮੀਦ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਹੋਪ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਲਗਾਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ। ਯੈਸ ਹਾਂਜੀ। Yeah, thank you ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ providing your detailed introduction and ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਕਿ what if ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਾ ਹੋਈ, ਐ ਦੂਸਰਾ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 1-on-1 ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ within a month you will be I can say skilled, computer skills ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਲਡ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1-on-1 ਮੈਂਟੋਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਰਾਈਟ। ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਹਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਥੋੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਆ, ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਕਹਿ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। That's true. Yeah, no, that's ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬੈਸਟ ਹੈ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। Yeah, thank you ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ। So ਹਸੀਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ can you please provide your detailed introduction to my audience, right? And if you have any doubts and concerns before joining this business, can you please share that with my audience as well? Hello, hi everyone. This is Hasina Sayeeda from USA, Illinois. मैं यहाँ पर USA में 20 साल से रह रही हूँ अपनी फैमिली एंड अपने बच्चों के साथ।
जैसे आप सबको ये पता है कि फॉरेन कंट्री में हम ये सोचकर एंटर होते हैं कि भाई बहुत सारी टेक्नोलॉजी एंड फैसिलिटीज हमें यहाँ पर मिलेगी। जब मैंने यहाँ पर आए 20 साल पहले, तो मैंने कुछ अलग ही लाइफ का एक रुख देखा है कि जैसे हम कहते हैं कि रियलिटी चेक हमें मिलता है। हाँ हम जी। चाहे कोई भी फील्ड में जॉब करो, या जैसे मेरा प्रोफेशन आई वाज अ टीचर। लाइक मैं ये सोचती थी कि बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तब मैं फुल टाइम वर्क करूंगी, फिर थोड़ा रुक जाते हैं फिर। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, लाइक बच्चों की और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी खत्म ही नहीं हुई। हाँ तो जी। लाइक आई वाज वेटिंग लाइक 10 years, एंड आफ्टर 10 years मैंने ये जर्नी को स्टार्ट किया जॉब की। फिर मुझे ये रियलाइज हुआ कि भाई जॉब की पेमेंट एंड सब कुछ इतना 8 hours एंड कभी 10 hours आप हार्ड वर्क करते हो, प्लस आपका वेदर चैलेंज एंड कम्यूट प्रॉब्लम, एंड फिर आपको जो पे मिलती है उसी से तो आपका आई वाज वेरी डिसअपॉइंट। एंड प्लस उसमें से मुझे अपने बच्चों को बेबी सिटर में भी छोड़ना पड़ता था। तो मैंने जब ये रियलिटी देखी तो आई वाज वेरी अपसेट एंड डिसअपॉइंट होके मैंने थोड़ा सा ये रिसर्च करना स्टार्ट किया कि लेट्स डू समथिंग वर्क फ्रॉम होम, जो अपने फ्लेक्सिबल भी हो एंड जैसे आजकल स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैम फ्री भी हो। तो मुझे ये मेरी फ्रेंड के थ्रू ये मेरा डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस मुझे मिला, तो मैंने इसे ज्वाइन किया एंड दिस प्लेटफॉर्म इज लाइक अमेजिंग। ये प्लेटफॉर्म ने मुझे अपनी आइडेंटिटी दी ने, मतलब मैं अपनी आइडेंटिटी बता रही हूँ। लाइक टोटली आई वाज वेरी शाई पर्सन, बहुत जैसे आप बोल सकते हैं कि टिमिड हूँ मैं। बट Yeah. ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद आप लोगों ने मेरे अंदर चेंजेस भी देखी, कैमरे में के सामने भी मैं आ रही हूँ एंड मैंने बोलना भी सिखाया है सोशल मीडिया पे। तो दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस बिजनेस। अदरवाइज मैं वही जॉब पे रहती एंड वही मेरा 8 9 to 5 वर्क एंड घर आना बच्चों के साथ, मेरी आइडेंटिटी बस वही हो जाती। बस ये प्लेटफॉर्म ने मुझे इतनी अच्छी आइडेंटिटी दी है एंड प्लस फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। जैसे मैंने अभी रिसेंटली ट्रैवल किया है, तो मैंने अपना सारा सामान, लाइक हमें होता है लैपटॉप एंड इवन फोन, तो मैंने अपने फोन से अपने बिजनेस को वहां पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। तो दिस इज वेरी अमेजिंग प्लेटफॉर्म। तो मुझे बहुत ही अच्छा अमेजिंग प्लेटफॉर्म मिला है। तो मैं ये इसका बहुत थैंकफुल करती हूँ, इस डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस स्पेशली फॉर द वुमेन जिसके बच्चे हैं, किसी के 2 बच्चे हैं, किसी के 4 बच्चे हैं। तो आप इजीली आपके मी टाइम में, जैसे लोग बोलते हैं कि भाई हम अपने मी टाइम में बोर हो जाते हैं, हम कभी टीवी वॉच कर ले सकते, व्हाई डोंट यू ट्राई दिस बिजनेस इन योर मी टाइम, Yeah. एंड प्लस यू गेट अर्निंग, गुड अर्निंग टू। Yeah, that's true. या Yeah, no, that's thank you, Hasina ji. आपने बहुत अच्छे से अपनी introduction provide की. Yeah, I'm definitely agree with you क्योंकि there's so many individuals every single day, they just looking for some kind of options, but कहीं ना कहीं, एक तो fear of failure होता है जो उनको आगे बढ़ने से रोक लेता है, और दूसरा वही है कि आगे की वो step नहीं लेने चाहते। वो चाहते हैं कि कोई शायद उनको आकर बताएगा कि this is the thing you need to do it. Nobody is here to push you. आपको जो first step है वो अपने आप लेनी पड़ेगी। हम सोशल मीडिया पर आते हैं every single day, प्रोवाइड यू द इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड यू द थिंग्स कि क्या हमारे बिजनेस के बेनिफिट्स हैं, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या चीज हम बताते हैं। पर कहीं ना कहीं वही है कि उनके डर वहीं पर आकर रुक जाते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि प्लेटफॉर्म क्या है, राइट, कैसे हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जबकि ये चीज इतनी ओपनली हम हर एक को बता रहे हैं, पर फिर भी उनको होता है ना कि हमें फोन पर ही सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। तो कृति जी, उसके लिए आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि क्यों हम ऑडियंस को बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करो, क्योंकि बहुत सारी ऑडियंस है, दे जस्ट वांट टू नो ईच एंड एवरीथिंग जस्ट ऑन अ वन फोन कॉल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आई एम श्योर कि हम यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं सब ये क्वेश्चंस को फेस कर रहे होंगे, क्योंकि एक आजकल लोगों का माइंडसेट हो गया है। ये जब से ये रील का कंसेप्ट आया ना, सब कुछ इंस्टेंटली चाहिए। बस अगर 30 सेकंड का रील मिल रहा है तो 1 मिनट की वीडियो नहीं देखी जा रही है लोगों से। एक ये चीज होती है। दूसरा मैं बोलूंगी कि हम क्यों नहीं शेयर करते, बिकॉज ये जो बिजनेस है ये पूरा का पूरा फ्लेक्सिबिलिटी के बेस्ड पे बना हुआ है, और हम इस बिजनेस का सबसे बड़ा फीचर भी यही है कि फ्लेक्सिबिलिटी, और तभी इस बिजनेस को लोग अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग टाइम जोन से कर पा रहे हैं। अगर अब हम वो बिजनेस में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती और हम सारी चीज आपको फोन पे बताते, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट की एक तो टाइम जोन का डिफरेंस आता है, बिकॉज इट्स अ ग्लोबल बिजनेस।
That's true. तो ये जब बिजनेस इंटरनेट बेस्ड है और ये 24 घंटे 24/7 चलता है, तो आप किस कंट्री के किस पार्ट से हमें कॉल कर रहे हो या हमें पूछ रहे हो और हम कहीं और है, शायद हमारे जॉब के टाइमिंग से या फिर हमारा कुछ पर्सनल रीजन होता है, तो वी कैन नॉट ऑलवेज बी अवेलेबल ऑन फोन। दूसरा रीजन That's true. कि आप हमें फोन से सारी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हो, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा रीजन मैं बताऊंगी कि फोन पे क्यों नहीं देनी चाहिए। इट्स ए बिजनेस, ठीक है, Yes. तो बिजनेस में देयर इज टन्स ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो एज अ पोटेंशियल बिजनेस ओनर और बिफोर टेकिंग एनी इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो वो सारी जो इतनी सारी माइन्यूट लेवल की इंफॉर्मेशन होती है, ब्रॉड एस्पेक्ट्स भी हम बताते हैं, ये सारी चीजें हम फोन पर बोलने जाएंगे, आपके लिए हम एक है, बट हमारे पास ऐसे दिन में 10 इंक्वायरीज आती है। तो That's हो सकता है कि एज ए ह्यूमन हम कुछ इंफॉर्मेशन आपको शेयर करना मिस कर दें और आपको लगेगा कि हमने आपसे सारी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करी। सो जस्ट टू मेंटेन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू नो एज अ फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, हम आपको ये सारी चीज थ्रू वेबिनार और फिर हमारे जो लाइव वर्कशॉप है उनके थ्रू हम भेजते हैं, जस्ट टू मेंटेन कि आपको लगे कि जो सारी इंफॉर्मेशन जिस तरह से होनी चाहिए उसी वे में आपके पास पास ऑन हो सके। ये रीजन होता है। दूसरा रीजन मुझे ये लग रहा है कि हर इंफॉर्मेशन देने का अगर हम इसको वीडियो प्रेजेंटेशन में देंगे तो आप उसको अपने बिट्स एंड पीसेस, आपके पास जो स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे और वीकेंड होता है, आप उनको रिवाइंड कर करके देख सकते हो। Definitely. और जब हमने एक बार इंफॉर्मेशन बता दी फोन पे, तो वो फोन कॉल आपने बस बंद कर दिया एंड यू नो द इंफॉर्मेशन विल स्लिप अवे फ्रॉम योर माइंड। तो ये नहीं होना चाहिए। जब हम आपको वेबिनार के थ्रू इंफॉर्मेशन भेजते हैं तो दैट विल रिमेन विथ यू और आप इसको बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो। Yes. So this Yes. is the reason why we don't share this information, you know, on single phone call. Yeah, that's true. And definitely, यहाँ पर मैं ये भी चीज ऐड करना चाहती हूँ क्योंकि we are getting so many inquiries a day, right? तो it's very hard कि हर एक के साथ 1 hour अगर हम वो information provide करने लगे नहीं तो तो वो फिर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी का पर्पस ही लॉस हो जाता है ना फिर। That's true. That's true. क्योंकि ये चीज उनको वो तब समझ आएगी ना जब वो बिजनेस में आएंगे कि कितनी इंक्वायरीज आती हैं रोज की, उनको हैंडल करना, उनको राइट सारी इंफॉर्मेशन सिस्टम के साथ प्लग इन करना। और जब आपके लिए इतना अच्छा सिस्टम बैक एंड पर बना हुआ है तो व्हाई नॉट भी उसको यूज करें, राइट? उसके साथ आपका भी टाइम सेव हो जाएगा क्योंकि किसी के पास भी ये टाइम नहीं है कि आप 1 hour हमारे साथ फोन पर बैठो, राइट? तो जब आपके पास वो आप नीचे स्टेप्स लेते हो, आपके पास वो वीडियोज आ जाती हैं, तो आप अपने आराम से ओन स्केड्यूल के हिसाब से नाइट टाइम जब आप बच्चों के साथ नहीं हो, फ्री हो, आपके पास मी टाइम है, तब उस टाइम में उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सको और मल्टीपल टाइम्स आप उसको एक्सेस एंड द कर बिगेस्ट फीचर ऑफ दिस बिजनेस इज वी डोंट लीव यू अनअटेंडेड। आप अगर हमारी मिडनाइट होती है और आप हमें रीच आउट करते हो, मे बी यू आर लिविंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, तो आप हमें रीच आउट करते हो तो हमारी जो ऑटोमेशन सिस्टम होती है वो इंस्टेंटली आपको एक रिप्लाई भेज देती है। That's सो यू वोंट फील अनअटेंडेड जब भी आप हमें रीच आउट करते हो तो। और फिर जब हमसे बात होती है देन वी डेफिनेटली वी एनकरेज यू टू रीच आउट टू अस, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके माइंड में होते हैं, बट बिफोर रीचिंग आउट अस वी वुड लाइक टू मेक श्योर कि आपके पास एक बेस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए ताकि हम उसके ऊपर फिर बाकी जो भी क्वेश्चन है उसके ऊपर हम हेल्दी डिस्कशन करें। That's true. Yeah. No, thank you, कृति जी, आपने बहुत ही अच्छे वे में इसको एक्सप्लेन किया। So another guest ने हमें अभी ज्वाइन किया है। So तानिया जी, वेलकम into our live session and please आप ऑडियंस को डिटेल में अपनी इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करें and whatever the concerns and doubts you have before joining this business, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उनके बारे में शेयर करें ऑडियंस के साथ कि कैसे आप उन अपने कंसर्न एंड डाउट से ओवरकम हो। Hello everyone, thank you Raman ji for inviting me on your page. मेरा नाम तानिया अरशद है। मैं करंटली यूएसए न्यूयॉर्क में अपने हस्बैंड और उनकी फैमिली के साथ तकरीबन 1.5 साल से रह रही हूँ। ओरिजिनली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान और बाय प्रोफेशन मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। एज एन इमिग्रेंट जब आप न्यू कंट्री में मूव करते हो तो वही स्ट्रगल्स, जॉब ढूंढना एंड एवरीथिंग, तो फिर मेरे पास डिग्री डॉक्टरेट थी लेकिन उसको कन्वर्ट कराने के लिए मुझे बैक टू मेडिकल स्कूल जाना था एंड एवरीथिंग। सो उस रिसर्च में तकरीबन साल एक लग गया। फिर जब मैंने डिसाइड किया अच्छा चले मैं मेडिकल स्कूल जाती हूँ, मैं जॉब शुरू कर दी थी लेकिन वो मेरी स्केल की नहीं थी, मैं एज असिस्टेंट काम कर रही थी। तो जब मैं कॉलेज जाने के लिए डिसीजन लिया, मैं अप्लाई करने वाली थी तो आई गॉट अ न्यूज़ दैट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो फिर मैंने कहा अब तो ऑफ कोर्स अब मैं स्कूल भी नहीं जा सकती क्योंकि स्कूल जब स्टार्ट होना था तब मेरी ड्यू डेट थी। सो आई डिसाइडेड ओके अब आने वाले वक्त में आई कैन नॉट डू 9 to 5 जॉब, आई शुड लुक फॉर समथिंग ऑनलाइन। सो आई स्टार्टेड लुकिंग ऑनलाइन ऑप्शंस और फिर जब देखा एड के थ्रू मैं इसमें आई, मैंने काफ़ी
तकरीबन 4-5 महीने तो स्केप्टिकल रही, ये वो है मतलब ऑथेंटिक है या नहीं। जब मैंने उसके बारे में रिसर्च की और उसके बारे में जाना तो ओके चलो लेट्स डाइव इनटू इट देन। इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी सपोर्ट मेरे हस्बैंड की है, जिन्होंने मुझे कहा कि यू शुड लाइक, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि यू शुड डाइव इनटू इट, आई एम विद यू एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हिम। एंड प्लस माय कोच, शी रियली मोटिवेट्स मी कि आप आओ। अब वो जो आप हम स्टेप लेते हैं ना 149 का ट्रायल पीरियड, तो उसमें कोई आपको आपका लॉस नहीं हो रहा। आप 149 पे करते हो। आप जब उसमें आपको नुकसान इसलिए नहीं हो रहा कि आप 149 पे करके आप आप वेबिनार देखते हो, डिटेल इन्फॉर्मेशन आती है, डिटेल राइट, इन्फॉर्मेशन मिलती है। और अगर आपको लगता रिफंडेबल है भी कि है। वो आपके लिए नहीं है तो आपको वो रिफंड कर देते हैं। तो मैंने दैट्स कहा ट्रू। चलो नुकसान तो कोई नहीं हो रहा। तो जब मैंने वो वेबिनार लिया ट्रायल पीरियड में, तो मैंने कहा ओके दैट इज समथिंग दैट आई शुड डू, बिकॉज आने वाले टाइम में आई विल नॉट हैव एनी ऑप्शन कि मैं अब क्या करूं। तो इसलिए अच्छा है कि मैं उस वक्त स्टक हो जाऊं, तो आई शुड स्टार्ट समथिंग बिफोर। Yeah. So that's how I dive into this business. Yeah, thank you, Tanya, providing your detailed introduction. You're not the only one. I think each and every mom going through this struggle, because we have the education, but because when we become the moms, our priorities change, right? Yes. And then we just stay stuck. That now is the family on the other side, career, and on the other side, what we need to choose. But with this business platform is such a blessing that without disturbing your family responsibility, you have the time to utilize both on the same time, राइट। आप अपने ड्रीम्स को भी बिल्ड कर रहे हो, अपने करियर को भी बिल्ड कर रहे हो, अपनी स्किल्स को भी बिल्ड कर रहे हो, उसके बिसाइड आप अपनी फैमिली को भी पूरा टाइम दे रहे हो। सो बेसिकली आप इस बिजनेस को अपने उस टाइम में कर रहे हो जब जो आपका मी टाइम होता है, आपकी फैमिली को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, टोटली फ्लेक्सिबिलिटी है आपके पास, राइट। तो उस टाइम को आप यूटिलाइज करके आगे बढ़ते हो। और दूसरा ये है कि एक ग्रेट सोर्स ऑफ अर्निंग आप बिल्ड कर रहे हो घर पर रहकर, राइट, जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, जो आने वाले टाइम में काइंड ऑफ एक लेगेसी आप अपनी जनरेशन को भी देकर जाओगे। जो एज वी नो कि जो आने वाली जनरेशन है, दे लव टू वर्क ऑनलाइन, राइट, एंड वी सीइंग दैट हर चीज मूव हो रही है। तो वो चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स दिस बिजनेस टू वर्क। जो बंदा इस चीज को समझ गया ना और इसमें आज आ गया, आई थिंक दैट्स द पर्सन हु गोना बिल्ड द फ्यूचर, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਆਪਣੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਕਿਲਡ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੈਰੀਅਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ। ਸੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸੈਸਿਬਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਨਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਰਮਨ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇਖੋ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਿਓਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੇ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ 104 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂਟਰ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, 12 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਤੇ 12 ਪੜ੍ਹੀਆਂ, 10 ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਨਰਸਿਸ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ ਆ, ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਰਕਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਰ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 10 ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ 12 ਪੜ੍ਹੇ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਉਹ ਭੈਣ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਣੀ ਰੀਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
ਐਦਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਬਸ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। yes ਫਿਰ ਉੱਥੇ yes ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੈਰੀਅਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਡ੍ਰੀਮਸ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਟਕ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਰਾਊਂਡ देयर, ਇਟ ਜਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਉਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਨਾਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਚਾਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮਮ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ I'm stay stuck in that situation, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। there's opportunities around, there is just matter ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਗਰ ਇਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਐਂਡ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ। है ना। So thank you Indrajit ji providing the answer of that question. So Hasina ji, mera question, my question is to you, from your community, so many the moms and the girls, they wanted to come ahead, but they just scared that they have to come in front of the camera, they don't want to show their faces, right? So I want you to explain here that there is a faceless marketing in our business as well, because this business is the marketing business. There's a various of way we can do it, right? So can you please explain a little bit about that how the other people who they wanted to come in front of the camera and they don't wanted to show their faces, how they can become successful into this business? Okay. Yeah, here again, Ramanji, I clearly, I want to explain about this digital marketing business. As I said, this business is it's a wonderful platform especially for the mothers who stuck at home, के बच्चे भी है and घर भी है, as I mentioned before. तो ये उन मॉम्स के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो जैसे मॉम्स है कि फेस करने से कैमरा एंड सामने आने से डरती है कि भाई पता नहीं सोशल मीडिया पे आने से लोग क्या कहेंगे या फिर हमारे रिलेटिव्स क्या बोलेंगे। तो ये अभी जैसे हमारे डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस ने हमें इससे अच्छा भी बेटर ऑप्शन दिया है कि भाई आपका फेस नहीं बता सकने से भी आप इसे रन कर सकते इजीली। आप इसे कंटेंट एक अच्छा पावरफुल कंटेंट बनाएं विदाउट शोइंग योर फेस, विदाउट शोइंग योर वॉइस, तो आप इसे इस तरीके से भी रन कर सकते हैं। जैसे मेरे लीड्स ने काफी मेरे लीड्स है, दे आर मुस्लिम टू एंड दे डोंट वांट टू शो देयर फेस इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो मैं उन्हें ये एक्सप्लेन करती हूँ कि आप आपका फेस नहीं बताएं, आप आपका कंटेंट डालें और आपके जो भी आपके जैसे वो पूछते हैं कि भाई कोई स्किल्स की जरूरत है या क्वालिफिकेशन की या हमें कोई कोर्स करना पड़ेगा इसके लिए। आई सेड नो, just watch the webinar and just follow the steps and the training site. रमन जी, इस बिजनेस की मुझे सबसे अमेजिंग पार्ट ये लगता है कि ट्रेनिंग साइट। आप देखें इसमें कोई क्वालिफिकेशन इंक्लूड नहीं है या आपको कोई फैंसी डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी कभी भी इवन मुझे टाइम नहीं मिलता है तो मैं 12 बजे लॉग इन करती हूँ ट्रेनिंग एंड मैं दोबारा अगेन एंड अगेन वॉच करती हूँ जहां पर भी मैं स्टक होती हूँ, तो आई कैन इजीली ग्रैब दैट थिंग्स। तो ये सारे उस मॉम्स के लिए जो टाइम नहीं निकाल सकती हैं अपने बच्चे या फिर फैमिली या कोई और चीजों की वजह से, तो आप रात में करें या फिर सुबह में, इसके लिए आप शायद 1 घंटा ही दें, बट आप इजीली ये बिजनेस को रन कर सकते हैं। अगर मैं रन कर सकती हूँ ये बिजनेस तो शायद रमन जी कोई भी कर सकता है विदाउट एनी फेस बताने की आपको वो नहीं है। Yeah, definitely. I know this is the things जो हम लोगों ने पहले ही शेयर किए हैं कि अब इस फ्रेम में हम 5 लोग बैठे हैं, राइट? तो सब डिफरेंट स्किल्स हैं सबके पास, राइट? सबके एजुकेशन लेवल डिफरेंट है, सबका प्रोफेशन डिफरेंट है, बट हमारे गोल एक है। We wanted to reach on the same destination, right? We are the moms, we are busy moms who really don't want to give up on our dreams. उसके साथ साथ we wanted to do something, और हमें ये मौका मिला और हम इस we grab this opportunity and आज आपके सामने है हमारी लाइफ के कैसे चेंज हो रही है। It's just a matter of कि आप कितना आगे बढ़ना चाहते हो। So Tanya, whatever the message you wanted to give the moms like you know, they really wanted to do something, but कहीं ना कहीं उनका एक fear होता है कि how we gonna handle everything beside our young kids। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे आप इसको मैनेज करते हैं? एंड आई थिंक बिजनेस में आकर हम अपने डे को मैनेज करना बड़े अच्छे से लर्न करते हैं, राइट? क्योंकि वी नो कि हमारा ये टाइम स्केड्यूल है जो हमने प्रोवाइड करना है टुवर्ड्स आवर बिजनेस। तो थोड़ा सा उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं उनके बारे में ये कहूँगी, सबसे पहले तो आप
आपकी जो विल पावर होती है, आपके जो फियर्स होते हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं, आप उनको अपना फ्यूल बनाएं कि ओके अच्छा मेरा ये डाउट है कि पता नहीं मैं कर सकूंगी या नहीं, लेकिन आप स्टेप जरूर लें, कम फॉरवर्ड, रिसर्च करें, बिजनेस के बारे में जानें। देन आपको इस कम्युनिटी में मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इतने पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं कि आपको हमेशा पुश ही मिलता है, आपको हमेशा मोटिवेशन ही मिलती है टू डू समथिंग। तो सबसे पहले तो आप जरूर एक्सप्लोर करें, इस उसमें आए, एंड जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर हम कर सकते हैं तो एनीवन कैन डू दिस। आप अपने That's आप true. को मोटिवेट करें। दूसरे Yeah. नंबर पे मुझे लगता है जब आप अपने वाई से कनेक्टेड होते हैं ना, जब आपको पता लगता है कि मैं ये क्यों करना चाहती हूँ, तो वो चीज आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है। तो आप अपने Yes. वाई के साथ कनेक्ट रहें कि मैं अगर कोई अपनी गोल अचीव करना चाहती हूँ तो अपने बच्चों की वजह से करना चाहती हूँ, उनके बेहतर फ्यूचर के लिए करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स के लिए करना चाहती हूँ, तो आप अपने वाई के साथ स्ट्रांगली कनेक्टेड रहें। दूसरा, इस बिजनेस की बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जिनको मतलब जिनको एक्सप्लेन करें तो शायद हमारे पास टाइम कम है। सबसे अमेजिंग बात इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। अब जैसे करेंटली मैं फुल टाइम जॉब कर रही हूँ, और लेकिन मैं इस बिजनेस को बिल्कुल चंक्स ऑफ टाइम में जब भी मुझे मिलता है, लाइक रात को जैसे उन्होंने बताया 12 बजे, अब बच्चे सो गए हैं, हस्बैंड सो गए हैं, आपके पास फ्री टाइम है, आप ट्रेनिंग साइट खोलो, आप ट्रेनिंग देख सकते हो। आपके पास जॉब में ब्रेक टाइम है, आप ब्रेक टाइम में कोई पोस्ट लगा सकते हो, किसी लीड से बात कर सकते हो, बिकॉज आपके पास आधा घंटा है। इसी तरह शाम को आपको थोड़ा सा टाइम मिला है, बच्चों को पार्क लेके गए हो, वो खेल रहे हैं, आप उस दौरान अपना कोई भी बिजनेस का काम कर सकते हो, टास्क कर सकते हो। सो इस बिजनेस की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे अमेजिंग बात है कि वो आप अपने खुद के बॉस हो, आपने सिर्फ अपने टाइम को मैनेज करना है कि हम कैसे मैनेज करके अपने फैमिली को अफेक्ट किए बगैर इस बिजनेस को रन कर सकते हैं। तो मेरा उनके लिए यही मैसेज है, आप जरूर आए इस बिजनेस में, दिस इज एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। मैं बहुत न्यू हूँ इस बिजनेस में, लेकिन जो ग्रोथ यहाँ होती है, जो पर्सनल आपकी ग्रोथ होती है, जो मोटिवेशन आपको मिलती है, दिस इज वन ऑफ द अमेजिंग थिंग। अर्निंग तो चले होती है, हर किसी को तो अर्निंग का वो होता है, लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा फैसिनेट करती हैं वो पर्सनल ग्रोथ, और आपको बहुत पॉजिटिव माइंडेड लोगों से बात करने को मिलती है। लाइक अब यहाँ हम 5 लोग हैं, वी आर फ्रॉम Yes. डिफरेंट कल्चर, वी डोंट नो ईच अदर पर्सनली, बट हम लोग इस बिजनेस के थ्रू कनेक्टेड हैं, इस बिजनेस के थ्रू जुड़े हुए हैं। सो दिस इज एन अमेजिंग Yeah. थिंग of this Yeah. business. No, that's really nice, Tanya. कि this is what we are looking for, right? The time freedom जो ये हम business हमें provide करता है, right? तो यही चीज हम ये नहीं कह रहे कि सिर्फ moms इस business में आ सकती. Any individual, young individuals who are looking for something to build on a side, the people who are looking for a change into their career, right? Or the people who really wanted to, they are like wanted to travel around the world, but they wanted to a source of earning beside them. Then they can be join this business community as well. So thank you everybody providing your detailed information, and we go through all the questions and concerns. So before we ending up this sessions, one of the question Kruti ji मैं आपके लिए पूछना चाहूंगी, क्योंकि all the time हम कहते हैं कि this is a proven system, right? तो थोड़ा सा उस proven system को highlight करें कि what exactly this proven system है क्या, और जो हमारे training के courses हैं, right? They're really really valuable courses. अगर हमने बाहर जाकर वो courses को करना पड़े, I think we have to spend a lot of money on them, and ये हमें यहाँ पर provide किए जाते हैं, and जैसे ही कोई चीज अपडेट होती है, अपने आप कंपनी पीछे अपडेट करके हमें पूरा सिस्टम प्रोवाइड कर देती है. We don't need to even worry about. तो थोड़ा सा उस चीज को आप हाईलाइट करें before we wrapping up this session. श्योर, क्योंकि एक बिजनेस सिस्टम ही तो है जिसकी वजह से हम इस बिजनेस को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं. जब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंपैरिजन बताना चाहूंगी इस बिजनेस और दूसरे बिजनेस के बारे में, कि जो दूसरे ऑनलाइन बिजनेस की ही बात करते हैं, चलो ऑनलाइन बिजनेस वर्सेस अदर ऑनलाइन बिजनेस इन द मार्केट. तो दूसरे ऑनलाइन बिजनेस में आपको खुद से ऑडियंस फाइंड करनी है, खुद से आपको प्रोडक्ट भी फाइंड करना है, उसको कैसे कैंपेन करेंगे, कैसे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन, या फिर उनको डिफरेंट सोशल मीडिया पे कैसे प्रमोट करेंगे, वेबिनार्स कैसे अरेंज करेंगे, वो सारी चीज आपको खुद ही फिगर आउट करनी पड़ती है. अब इतनी सारी नॉलेज नहीं होती, हर प्लेटफॉर्म की नॉलेज नहीं होती, हर मार्केटिंग स्टाइल की नॉलेज नहीं होती. जैसे ईमेल कैंपेन कैसे रन होता है, वेबिनार कैसे रन होता है, वो सारी चीजें सब लोगों के पास नहीं होती. उनके लिए
उसके लिए आपको जाना पड़ता है, या तो फिर आप कोई डिग्री ले लो या फिर कोई ऐसे कोर्सेज ले लो, सो दैट यू कैन लर्न दोज थिंग दो स्किल्स एंड देन यू कैन अप्लाई। अब फिर भी क्वेश्चन आएगा कि टारगेट ऑडियंस कहाँ से लेकर, आपकी निश फाइंड करो, आपका लाइक किसको आप प्रमोट कर रहे हो, कौन सी प्रोडक्ट के लिए कौन सा टारगेट ऑडियंस चाहिए, वो सारा खुद फिगर आउट करो। तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, और फिर अगेन देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, यू डोंट नो कि वेदर यू आर गोइंग टू बी सक्सेसफुल और नॉट। दैट्स ट्रू। बट यहाँ पे बात करते हैं कि दिस इज बिजनेस, इट्स अ यूनिक बिजनेस। व्हाई इट इज यूनिक? बिकॉज वी वुड से नॉर्मली कि इट इज अ बिजनेस इन अ बॉक्स, जहाँ पे आपको एक बिजनेस को सक्सेसफुल होने के लिए जितनी भी चीजें चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जो भी फैक्टर्स चाहिए, वो सारे आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू क्लेम कि वी डोंट लाइक वी डोंट नो कि आप कुछ भी मैटर नहीं करता कि आपके क्या प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, क्या आपके प्रीवियस एक्सपीरियंस रहे, क्या आप बिजनेस बैकग्राउंड से हो नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में आपको जो 4 हमारे बिजनेस के पिलर्स है, जो हर बिजनेस के लिए चाहिए, एक तो आपको प्रोडक्ट्स होने चाहिए आपके पास, आइदर प्रोडक्ट और सर्विस, बिकॉज एनी बिजनेस ऑफर समथिंग, एनी बिजनेस हैज सम ऑफर, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो दोनों चीज है, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्विस एंड अ प्रोडक्ट। So we have right mix of product and the service. Second, we have training side. Third, we have community. और fourth, we have the proven system. अब बात करते हैं proven system क्या है. So proven system, it's already a system built, for you. कि जब आप बिजनेस में आते हैं तो आपको सिर्फ सिस्टम के साथ प्लग इन करना पड़ता है। That's true. बाकी सारी चीजें अपार्ट फ्रॉम मार्केटिंग पार्ट, सारा जो एक पर्सनल एडमिन असिस्टेंट को करना होता है, बिकॉज किसी भी बिजनेस में बहुत सारे रिपीटेटिव टास्क होते हैं जो हमें फ्रीक्वेंटली ऑन अ डेली बेसिस करने पड़ते हैं। ऑल दोस टास्क विल बी टेकन केयर ऑफ बाय आवर प्रूवन सिस्टम। जैसे क्लाइंट्स की इंक्वायरी, जब अभी ही मैंने थोड़े टाइम के पहले बोला कि आप हमें किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से रीच आउट करते हो, हम शायद सो रहे हैं या फिर हम जॉब पे है, बट आवर सिस्टम विल इंटरेक्ट विथ यू ऑन बिहाफ ऑफ, ठीक है। वी डोंट नीड टू बी ऑफलाइन थ्रू आउट द डे, थ्रू आउट द नाइट टू रन द टू मेक मनी और टू कीप द सिस्टम रनिंग। सारा कुछ ऑटोमेशन के थ्रू चलता है। अब ये ऑटोमेशन जब आप बिजनेस में आओगे, देन यू विल रियलाइज कि आपके बिहाफ में सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे क्लाइंट से इंक्वायरी करता है, फॉलो अप भी कर लेता है। यू जस्ट हैव टू मॉनिटर कि आज के दिन में कितनी इंक्वायरीज थी, कितने को रिप्लाई जा चुका है, फॉलो अप इंक्वायरीज। फिर उसमें आगे बहुत सारी चीजें होती है, वो तो जब आप बिजनेस में आओगे तब पता चले। अब दूसरी बात होती है कि ट्रेनिंग साइड, क्यों हम बोलते हैं कि आप किसी भी बैकग्राउंड से आ सकते हो, एवरीबडी हैज टू स्टार्ट विथ सिंगल पॉइंट ऑफ ट्रेनिंग, जहां सबसे नो मैटर अगर आपके पास आईटी बैकग्राउंड है या फिर आप, जैसे मेरी बात करो तो मैं फाइनेंस बैकग्राउंड से, बट वी ऑल आर सेम वंस वी एंटर द बिजनेस। सबकी ट्रेनिंग एक जगह से शुरू होती है, और ट्रेनिंग इस तरह से बनाई गई है कि लैंग्वेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, इवन तो right now our training is updated in such a way that the training can be done in, I think, more than 100 of languages. इसमें हमारी इंडिया की बात करें तो इंडिया की काफी सारी लैंग्वेज को भी इसमें कवर किया गया है, जैसे गुजराती, हिंदी, पंजाबी, तेलुगु, कन्नड़, बंगाली, बहुत सारी लैंग्वेज में ट्रेनिंग है। तो जब आप ट्रेनिंग को अपनी लैंग्वेज में करते हो तो एक तो आपका थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ जाता है, दूसरा कि जो ट्रेनिंग है वो इतनी इन डेप्थ है, नो मैटर। जैसे मैं इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास फेसबुक का कोई अकाउंट ही नहीं था। आई स्टार्टेड विथ 0 एक्सपीरियंस इन सोशल मीडिया एंड 0 फॉलोअर्स, बट थैंक्स टू द ट्रेनिंग एंड उसके बाद मेंटरशिप। बट ट्रेनिंग से बहुत सारी चीजें आप सेल्फ लर्न कर सकते हो, और ट्रेनिंग का लाइफ लॉन्ग एक्सेस रहता है। जब आप दूसरे बिजनेस में जाते हो या दूसरी जॉब में भी जाते हो, जैसे मैं जॉब की बात करूं तो जिस जॉब में हम जाते हैं वहां पे हमें 15 डेज के लिए ऑन बोर्डिंग ट्रेनिंग देते, देन द ट्रेनिंग विल डिसअपियर, ठीक है। या तो हमें नोट्स लिख लेने पड़ते हैं या फिर हमें किसी को जा जाकर पूछना होता है, बिकॉज व्हेन वी फेस एनी इश्यू, यहाँ पे ट्रेनिंग का लाइफ लॉन्ग एक्सेस रहता है 24/7। आप खुद से ही ट्रेनिंग को अनलॉक कर सकते हो, खुद ही ट्रेनिंग को देख सकते हो, बार बार रिमाइंड करके देख सकते हो, अपने स्मॉल पॉकेट्स ऑफ टाइम ड्यूरिंग द डे निकाल के उस ट्रेनिंग को कर सकते हैं। सो दूसरी चीज, जब ट्रेनिंग कंटिन्यूअसली बैकएंड में अपडेट होती रहती है, बिकॉज ये सोशल मीडिया मार्केटिंग का बिजनेस है, यहाँ पे हर दिन नई चीज, जैसे आजकल कितने एआई टूल्स, जब हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उसके बाद मैंने 1.5 साल में देखा कि कितने सारे एआई टूल्स हमने एड ऑन करते ही जा रहे। बट वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज हमारी ट्रेनिंग बैकएंड में अपडेट रहती है। सारे जो भी नए चेंजेस आते हैं, हमारे जो लीडर्स बैठे हुए हैं, एवरी वीक जो मास्टरमाइंड्स होते हैं, हमें सिखाते हैं, जो भी नए टूल्स आते हैं कैसे उनको यूज करना, उनका इम्प्लीकेशंस क्या है, उसके डाउन साइड्स भी क्या है। सारे टूल्स अच्छे नहीं भी होते, तो एवरीथिंग वी विल बी टॉट कि किस तरह से अपने आप को सेफगार्ड रख के
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को हम यूज करते हुए इस Use बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं. Yes. Yeah. Definitely. Yeah. No, thank you, Kruti ji. आपने बहुत ही अच्छे वे में explain किया. This is a really information session. I think the audience, and thank you everybody who watch us live and from the different part of the world and leave your beautiful comments. And like we all share our journey, our concerns, and whatever we feel now into this business platform and how this business platform changing our life in these days, right? So we are the live example. If you're seems interested, you getting inspired from our journey, you can contact to us. We are here to guide you. You can check out the platform. आप जिस किसी को भी फॉलो अप कर रहे हैं उनकी वेबसाइट पर जाएं, रजिस्टर करें, वर्कशॉप को देखिए और नेक्स्ट स्टेप लेकर आगे बिजनेस में आकर इसको एक्सप्लोर करें ताकि आप भी एक फर्म डिसीजन बना सकें और आने वाले टाइम में आप भी अपनी इंस्पायरिंग जर्नी यहाँ पर शेयर कर पाएं. So thank you everybody for giving your such a precious time. I really appreciate your effort and you guys provide a really great information. Thank you so much, Raman. Thank you Thank so you, much. Raman ji, for inviting us. Thank you ji. so much. Thank you. Thank you, guys.